Good morning, students. Welcome to the study of Standard 10 Science and Technology Part 1, Chapter 5 Heat. Students, today let us solve some numericals of Chapter 5 Heat. So, problem number 1. Calculate the amount of heat required to convert 5 grams of ice of 0 degree centigrade into water at 0 degree centigrade. Given specific latent heat of fusion of ice is equal to 80 calories per gram. So here in this problem, you have to find the amount of heat that has been absorbed by ice when it is converting into water. So here we have ice and it is converting into water. The conversion has started, ice has started melting and it is converting into water. Heat is being provided, but that heat is not used to raise the temperature of the substance. It is absorbed by the substance and is trapped in the substance, in the bonds, in the form of latent heat. This you have already studied in the theory, this graph. So here we have to find the amount of heat that is being absorbed when ice is converting into water, and that heat is latent heat. That will be released when the burner is put off and water starts converting into ice. When water freezes back into ice, that latent heat will be released. So we have to find the amount of heat absorbed. So the heat absorbed is given by the formula Q is equal to ml. This is the formula for the heat absorbed when ice is converting into water. Yeah, when the substance is converting from one state to the other state. Whenever there is change of state, heat is there, heat is being provided, but it will not raise the temperature. It will be hidden inside the substance in the form of latent heat. There will be no rise in temperature. So that heat is given by the formula Q is equal to ml. So M here is given to be 5 grams. Mass is 5 grams. L is the latent heat that is trapped in the substance when it is converting from one state to the other state, and it is hidden there. So that is here the substance is ice, it is converting into water. So latent heat of fusion of ice is given, it is a constant value, standard value, and it is 80 calorie per gram. This is a specific latent heat of fusion of ice. This will be given to you in the problem. Now the formula will be, start solving the problem. So first and foremost, you have to write down the formula. So Q is equal to ml will be the formula to solve this problem, because this is latent heat. During the conversion, whatever heat is absorbed is given by the formula Q is equal to ml. So Q is the amount of heat absorbed, that is unknown, we have to find. M is the mass, that is 5 grams. So 5 grams into L is the latent heat, that is given 80 calories per gram. So a very simple problem, you just have to multiply 5 into 80. So 5 into 80 is 400. Grams cancel off and calories. So this much heat will be trapped in water because ice is now converting into water. तो ये वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है उनके बॉन्ड्स में इतना हीट ट्रैप हो जाएगा और वो हिडन रहेगा. इट विल बी देयर इनसाइड द सब्सटेंस. जब हीट पुट ऑफ करेंगे, व्हेन द बर्नर इज पुट ऑफ, water will start freezing and this much heat will be released. So this is the heat absorbed. One more problem. Calculate the amount of heat required to convert 10 grams of water at 100 degree centigrade into steam. Girls, this C, you can call it centigrade, you can call it Celsius. So 100 degree Celsius भी बोल सकते हैं. Into steam. अब इस problem में water is converting into steam. Ice to water. यहाँ water ही रहेगा. अब water steam बनना शुरू होएगा at 100 degree. एक particular temperature पर ही conversion start होता है. कभी भी conversion start नहीं होता है. तो water का जब temperature 100 degree पहुंच जाएगा तभी वो steam बनना शुरू होएगा. So it is already 100 degree here and it has started converting into steam. So heat is being provided. So the heat provided will get trapped in the substance
इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट, स्टीम में जाके वो छुपा रहेगा इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट। तो कितना हीट छुपा है वो निकालने के लिए अगेन द फॉर्मूला विल बी Q इज इक्वल टू ml। Q इज इक्वल टू ml, ये फॉर्मूला कब यूज करना है? व्हेन द हीट इज लेटेंट हीट, व्हेन कन्वर्शन स्टार्ट्स फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर स्टेट, तब Q इज इक्वल टू ml यूज करना है। एंड व्हेन देयर इज नो कन्वर्शन, व्हेन द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस इज when the substance is only in one state, either solid or liquid, for example this stage here in this slant portion, तब फॉर्मूला यूज करना है Q इज इक्वल टू m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। यहाँ राइज इन टेम्परेचर होगा या फॉल इन टेम्परेचर होगा, तब T का काम है। यहाँ T का काम है ही नहीं क्योंकि यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है 100 100 100 बिकॉज वाटर इज कन्वर्टिंग इनटू स्टीम, हियर आइस इज कन्वर्टिंग इनटू वाटर। सो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही कन्वर्शन होता है, तो टेम्परेचर का काम ही नहीं है यहाँ, तो इसलिए फॉर्मूला यूज करना है Q इज इक्वल टू ml। सो Q इज इक्वल टू m इज गिवन टू बी 10 grams, so 10 grams into L is the specific latent heat of vaporization, this will be given to you। so 540 ये स्टैंडर्ड वैल्यू है वाटर के लिए, so 540 कैलोरी पर ग्राम, ग्राम goes away, so Q is equal to 10 into 540 calories, so Q is equal to 5400 calories। इतनी हीट वो स्टीम में छुपी हुई रहेगी। दिस विल बी रिलीज्ड व्हेन द बर्नर इज पुट ऑफ एंड स्टीम स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू वाटर। कंडेंसेशन जब होएगा, स्टीम जब वाटर बनेगा तो इतना हीट रिलीज होएगा। सो दिस इज लेटेंट हीट। इन बोथ द प्रॉब्लम्स यू हैव कैलकुलेटेड latent heat and the formula for calculating that heat is Q is equal to ml. Now the next problem. A copper sphere of 100 grams mass is heated to raise its temperature to 100 degrees Celsius and is released in water of mass 195 grams and temperature 20 degrees Celsius in a copper calorimeter. If the mass of calorimeter is 50 grams, what will be the maximum temperature of water? Given specific heat capacity of copper is 0.1 calorie per gram degree Celsius. Now in this problem, you have calorimeter. Calorimeter is made up of metal. It is a cylindrical vessel. Copper का vessel है ये cylindrical form में। वो vessel है, उस वेसल को एक वुडन बॉक्स में रखते हैं ताकि देर इज नो लॉस ऑफ हीट फ्रॉम इनसाइड टू द सराउंडिंग एंड नो हीट कम्स इनसाइड द कैलोरीमीटर फ्रॉम द सराउंडिंग। सो द एक्सचेंज इज ओनली बिटवीन द सब्सटेंस, द हॉट बॉडी दैट इज रिलीज्ड इन द वेसल, इट इज द एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस ओनली बिटवीन देम। सो कैलोरीमीटर बस सिर्फ एक सिलेंड्रिकल वेसल है, ये है वो सिलेंड्रिकल वेसल। सिलेंड्रिकल वेसल मोस्टली इट इज मेड अप ऑफ कॉपर, मेटल का वेसल है। वेसल को वुडन बॉक्स में रखते हैं। वुड क्यों यूज करते हैं? बिकॉज इट इज इंसुलेटर, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो कोई हीट, अंदर की हीट बाहर नहीं जा सकती है और बाहर की हीट अंदर नहीं आ सकती है। तो जो भी एक्सचेंज है that is there only between the substance that is dipped in the vessel and the whatever substance is there. If a hot ball is dipped in water taken in the vessel, cylindrical vessel, तो ये वेसल है, सिलिंड्रिकल वेसल है, उसमें पानी है, ठंडा पानी, उसमें वो हॉट बॉल डाल रहे हैं, तो हीट जो है ट्रांसफर होएगा फ्रॉम द हॉट बॉल टू द वाटर एंड द कैलोरीमीटर। ये कैलोरीमीटर, ये जो वेसल है वो मेटल का है, मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो वो जो वेसल है वो भी हीट एब्जॉर्ब करेगा और पानी हीट एब्जॉर्ब करेगा, किसमें से? ये हॉट बॉल में से। और जो एक्सचेंज है दैट विल बी ओनली बिटवीन दीज थिंग्स, बिटवीन द बॉल, द वाटर एंड द वेसल। नो हीट फ्रॉम इनसाइड will escape into the atmosphere and no heat from outside will get into the calorimeter. So इसलिए ये वुड का वुडन बॉक्स है, ये जो वुडन बॉक्स विच विल एक्ट एज इंसुलेटर। और ये जो बीच का जो इनके बीच में जो
जो भी ये वेकेंट स्पेस है उसे वुडवुल से भरते हैं। यहाँ पर ये जो खाली जगह है यहाँ पे वुडवुल भरते हैं, ताकि दैट इज ऑल्सो बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इंसुलेटर। वो भी कोई हीट बाहर की अंदर नहीं आने देगा और अंदर की हीट बाहर नहीं जाने देगा। सो दिस इज अ कैलोरी मीटर। तो ये कैलोरी मीटर है। कैलोरी मीटर ये वेसल है, ये बीच का, इसमें पानी है, ठंडा पानी, उसका टेम्परेचर है 20 डिग्री। ये पानी का टेम्परेचर है 20 डिग्री, ठंडा पानी है। उसमें ये कॉपर का बॉल है, ये कॉपर स्फीयर, उसको गर्म कर रहे हैं टिल 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और वो गर्म बॉल को ये ठंडे पानी में इमर्स कर दिए। दिस इज देयर इन द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम ये बता रहा है कि सिलिंड्रिकल वेसल है, वेसल में पानी है, ठंडा पानी, उसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। उस ठंडे पानी में कॉपर का ये बॉल है, दिस इज कॉपर बॉल, Cu मीन्स कॉपर, कॉपर स्फीयर। सो कॉपर का बॉल है, उसको गर्म कर रहे हैं। गर्म कैसे करना है, पानी को उबालना है और वो कॉपर को उसमें डाल देना है, तो कॉपर गर्म हो जाएगा। कुछ देर तक, आधे एक घंटे तक रखना है और कॉपर ऐसे, कॉपर का जो स्फीयर है वो गर्म हो जाएगा। इट विल अटेन द टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऐसे वो गर्म कॉपर बॉल को अब ये ठंडे पानी में जो कैलोरी मीटर में रखा है 20 डिग्री उसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर है, तो उसमें डुबा देना है, इमर्स कर देना है फुल्ली। सो व्हेन द कॉपर बॉल इज इमर्स्ड इन द कोल्ड वाटर विच इज कंटेन्ड इन द कैलोरी मीटर, दिस इज द कैलोरी मीटर, ये जो वेसल है, तो हीट exchange will take place and hot copper ball will lose heat and cold water as well as this metal calorimeter will absorb heat. So क्योंकि heat जो है, heat is energy, energy का transfer होएगा from a body at higher temperature to a body at lower temperature. Copper ball, copper sphere is at high temperature, 100 डिग्री पर है तो उसका टेम्परेचर हाई है। वाटर इज एट 20 डिग्री तो उसका टेम्परेचर लो है। तो जब कॉपर बॉल को ठंडे पानी में डालेंगे तो एनर्जी ट्रांसफर होएगा। एनर्जी फ्लो ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। तो हॉट कॉपर बॉल से हीट निकलेगी और वो हीट ये कोल्ड जो वाटर है एंड द कैलोरी मीटर, दोनों, कैलोरी मीटर भी क्योंकि वो मेटल का है तो वो भी कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगा और पानी हीट एब्जॉर्ब करेगा हॉट बॉल में से। सो यहाँ ट्रांसफर ऑफ हीट हो रहा है। सो हियर इन दिस प्रॉब्लम यू हैव टू यूज द प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज, क्योंकि ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी। Transfer of heat always takes place from a body at higher temperature to a body at lower temperature. So the principle of heat exchange says that heat lost by the hot body is equal to heat gained by the cold body, by the cold body or bodies as per given in the problem. So here in this problem hot body एक ही है, that is the copper sphere, and cold bodies है, दो हैं, एक है ठंडा पानी और एक है वो कैलोरी मीटर। दोनों हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं फ्रॉम द हॉट कॉपर स्फीयर। तो यहाँ ये जो एक्सचेंज है ये तीनों के बीच रहेगा, कॉपर स्फीयर, पानी और कैलोरी मीटर। तो ये जो एक्सचेंज है ये एक ये वुडन बॉक्स में हो रहा है। दिस कंप्लीट थिंग इज कॉल्ड कैलोरी मीटर, ताकि द हीट एक्सचेंज टेक्स प्लेस ओनली बिटवीन दीज थिंग्स। अंदर की हीट बाहर नहीं जाएगी, बाहर की हीट अंदर नहीं आएगी। सो हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी। नाउ ये जो ट्रांसफर है, ट्रांसफर ऑफ हीट, हॉट बॉडी हीट लूज कर रहा है तो उसका टेम्परेचर डाउन होएगा, उसका टेम्परेचर फॉल होएगा, और कोल्ड बॉडी, कोल्ड वाटर हीट गेन कर रहा है तो उसका टेम्परेचर राइज होएगा। कैलोरी मीटर, ये जो कॉपर का वेसल है वो भी हीट गेन कर रहा है तो उसका टेम्परेचर राइज होएगा। तो कब तक ये एक्सचेंज चलेगा, ये जो एक्सचेंज चल रहा है एक से दूसरे में हीट जारी है, तो ये कब तक जाएगी, जब तक वो पूरा जो सिस्टम है दैट अटेन्स इक्विलिब्रियम, टिल द सब्सटेंस, टिल द सिस्टम of the three substances here, copper ball, water and calorimeter, till all of them attain
constant equilibrium temperature. Till that time the transfer will take place. Okay, suppose एक बकेट में हॉट वाटर है और एक बकेट में कोल्ड वाटर है. हॉट वाटर इज बीइंग पोर्ड इन द कोल्ड वाटर. तो हॉट वाटर हीट लूज करेगा और कोल्ड वाटर हीट गेन करेगा. तो कब तक ये ट्रांसफर चलेगा? जब तक दोनों जो सब्सटेंसेज हैं, हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, उनका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हो जाता, तब तक ये ट्रांसफर चलेगा. तो सपोज वी विल हैव टू मेक एन अजम्पशन हियर. लेट द टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, ये यहाँ इन तीनों को मिक्सचर बोलते हैं या सिस्टम भी बोल सकते हैं. तो लेट द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, और यू कैन सी द सिस्टम ऑफ थ्री थिंग्स यू हैव हियर. सो लेट द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर और सिस्टम बी T डिग्री सेल्सियस. मतलब ये T क्या है? वो जो कॉपर कैलोरीमीटर है, कॉपर स्फीयर है, जिसका टेम्परेचर 100 था, तो 100 से उसका टेम्परेचर ड्रॉप हो के T पर आ जाएगा. और पानी का टेम्परेचर 20 से बढ़ बढ़कर T पर आ जाएगा. कैलोरीमीटर, ये जो वेसल है, उसका भी टेम्परेचर 20. अब ये जो कॉपर, ये जो कैलोरीमीटर है, उसका भी टेम्परेचर उतना ही लेंगे जितना पानी का टेम्परेचर है. पानी का टेम्परेचर कितना था पहले? कॉपर बॉल डालने के पहले 20 डिग्री था. तो ये जो वेसल है ना, कॉपर वेसल, उसका भी टेम्परेचर 20 ही लेंगे. तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा, 20 से T हो जाएगा. वेसल का टेम्परेचर बढ़ेगा, 20 से T हो जाएगा. स्फीयर का टेम्परेचर, हॉट बॉल का टेम्परेचर कम होएगा, 100 से T हो जाएगा. सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. ये पहले ही तुमको फिक्स कर लेना है. लेट द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर या सिस्टम बी T डिग्री सेल्सियस. नाउ हियर hot copper ball is losing heat. So heat lost by the hot copper sphere, Cu is copper sphere is given by the formula. Heat is being lost, so it is given by there is change in temperature. तो फॉर्मूला यूज करेंगे हम m इंटू सी इंटू डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर का चेंज हो रहा है, राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है, या फॉल हो रहा है. तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, नॉट ml. यहाँ लेटेंट हीट का काम नहीं है, यहाँ चेंज ऑफ स्टेट नहीं हो रहा है, यहाँ राइज एंड फॉल ऑफ टेम्परेचर हो रहा है. तो हम हीट के लिए Q है ये, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर Q इज द हीट. हीट को Q से डिनोट करेंगे. तो heat lost by the hot copper sphere is equal to, I will write Q here, capital Q is equal to m into C into delta T. Okay, hot जो substance है वो एक ही है, वो है copper sphere. अब the hot object is over. Now cold, the things, the substances that are gaining heat. तो दो चीज है, एक है water और एक है वो कैलोरीमीटर. So heat gained by the water is equal to, I will call it Q1 because three things are there. एक हो गया sphere, एक हो गया water और एक होगा वो वेसल, कैलोरीमीटर, वो जिसमें पानी है. वो वेसल भी मेटल का है, इसलिए वो भी हीट लेगा, एब्जॉर्ब करेगा. तो हीट गेन्ड बाय द वाटर इज Q1, I am calling it. That will be m into C into delta T again. Okay, and तीसरी चीज है हीट गेन्ड बाय द कैलोरीमीटर. कैलोरीमीटर मीन्स दैट कॉपर वेसल जिसमें पानी है. सो कैलोरीमीटर इज इक्वल टू Q2, I will call it, and that is m into C into delta T. So this formula m into C into delta T will be used here. No need of formula ml. चेंज ऑफ स्टेट नहीं हो रहा है, लेटेंट हीट का काम नहीं है यहाँ. तो m into C into delta T. m is the mass, C is the specific heat capacity, this we have already studied, and delta T is rise in temperature या fall in temperature. So according to the principle of heat exchange, according to the principle of heat exchange, ये प्रिंसिपल लगाएंगे यहाँ हीट एक्सचेंज का. So according to the principle of heat exchange,
हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड। जितना लूज होता है उतना ही वो दूसरा सब्सटेंस गेन करता है, तो हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड। सो हीट लॉस्ट या हीट लॉस्ट इज क्यू, ये दिस इज द हीट लॉस्ट, क्योंकि वो हॉट स्फीयर लूज कर रहा है, तो क्यू इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, क्योंकि दो चीज पानी और वेसल गेन कर रहे हैं, इसलिए दो आएंगे यहाँ पर राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में एक ही चीज है, कॉपर जो लूज कर रहा है, हॉट कॉपर बॉल जो हीट लूज कर रहा है, तो यहाँ एक ही रहेगा और यहाँ दो रहेंगे, तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। नाउ